So, acceleration due to gravity g, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी मिलती है हमको? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Are there any variations to this value? The answer is yes, there are variations due to many reasons. Have you written the reasons in the last class? No. Okay. Now there are reasons for change of this value, and these reasons have been divided into three parts. One, if there are variations, different type of variations. One is variation due to altitude. Due to altitude. Altitude means what? Height and depth. सरफेस से ऊपर जाएंगे या सरफेस से नीचे जाएंगे तो उसमें जी की वैल्यू में चेंज आएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? देयर इज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड के दो पार्ट हम हिस्से में पढ़ेंगे. फर्स्ट ड्यू टू हाइट एंड अदर इज ड्यू टू डेप्थ. ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ. ये तीसरा ड्यू टू लैटिट्यूड. लैटिट्यूड चेंजेस. लैटिट्यूड चेंजेस क्यों होते हैं? लैटिट्यूड चेंजेस अर्थ की रोटेशन के कारण होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. So if we go up, if we go down, then there will be change in g. There is also change in the value of g if the earth is rotating. Okay, these are the changes. And then due to shape of the earth. Due to shape of earth. So you will remember कि G में जो changes होते हैं उसके reason क्या क्या हैं? These are the reasons. If you go to higher place, if you go to deeper place, if the rotation of Earth is more at one place, rotation is less at the other place, G will change, and there is a variation due to shape of the Earth. Now this we will take up one after one. First, the change in G due to height. इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और इसकी अर्थ हैज अ रेडियस कैपिटल आर. इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर. नाउ इफ वी हैव ए ऑब्जेक्ट हियर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. सपोज अवर ऑब्जेक्ट इज मच हायर देन दिस सरफेस. हाउ मच हायर? वी मेक इट हियर. लेट दिस हाइट बी h. And our object is here. Then what will be the acceleration experienced by this object? Will it be same 9.8 g or will it be different? So our answer is it will be different, and we can always calculate it. How we can calculate it? Suppose its acceleration due to gravity is g at h. Here the acceleration is g on the surface. Okay, now we have to find out value of gh. How do we find the value of gh? देखिए, इसका अर्थ का मास
mass of earth. This has got mass m. What will be the force of attraction by Newton's law? Force is equal to G m upon distance square. How much is the distance there? R plus h square. Right? This is formula for force. And how much is this force equal to? Force at this place is mass into acceleration, and this acceleration we have assumed to be gh. So what will be the force? M into gh. So M into gh is equal to G m upon R plus h square. So we get this value Gm upon R plus h square. Now what is the value of G on surface? Gm upon R square. This we have already done. Small g is equal to Gm upon R square, because on the surface h is equal to 0. On the surface here, this distance is only R. Okay. Now divide the two. If we divide the two, then what do we get? This upon this, GH upon GS. This is equal to this upon this. This is cancelled. And what do we get here is R square upon R plus H square. Okay. अब इस फ्रैक्शन को देखिए, यहां पर राइट हैंड साइड में दिस इज R प्लस H. कौन बड़ा है कौन छोटा? R प्लस H बड़ा और R छोटा. इसलिए इन दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? GS बड़ा और GH छोटा. तो हमने एक रिजल्ट निकाला, दैट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट इज लेस than value of acceleration on the surface. That means acceleration due to gravity at a height decrease. ये अगर हम इसको GH की वैल्यू लिखेंगे, so GH is equal to R square upon R plus H square into G on the surface. Therefore, this fraction is less than 1. It is less than 1 क्योंकि denominator बड़ा है, numerator छोटा है. Therefore, GH is less than GS. Result with height. Height means altitude with height. With height, G decrease. G किसके लिए सिंबल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज. ठीक, ये हमने रिजल्ट निकाला. और कितना हो जाता है ये फॉर्मूला आपको याद है कितना हो जाता है, राइट? तो इसको आप याद रखेंगे. ये हमने हाइट के लिए बना लिया. GH इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर इंटू GS. आप किसी भी फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, इसमें भी याद रख सकते हैं, वैसा भी याद रख सकते हैं, जैसा मर्जी याद रखें. ठीक है. अब एक और, इसी में ये सबने नोट कर लिया. जब हमने ये कैलकुलेशन करनी है, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ G एट माउंट एवरेस्ट विच इज 5 किलोमीटर हाई. What will be the value of G at Korba, which is 1.5 kilometer higher than the sea level? ये सब हाइट, रेडियस 6400 के कंपैरिजन में बहुत छोटी छोटी हाइट्स, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, all these heights are
very small compared to radius of the earth which is 6400. तो हमारा ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए, दिस इज GH इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H GS। GH upon GS is equal to, this can be written as R plus H upon R to the power -2। अगर +2 को -2 करेंगे तो ये ऐसा उल्टा हो जाएगा। ओके, इससे हमने R से डिवाइड कर दिया, सो दिस विल बी 1 प्लस H अपॉन R to the power -2। ओके, अब अगर हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2H अपॉन R प्लस हायर पावर्स ऑफ H स्क्वायर अपॉन हायर पावर्स ऑफ H अपॉन R। तो A 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके अलग अलग टर्म्स बनते जाएंगे। आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है अभी नहीं मैथ्स में? ओके, तो ये आपको पढ़ा है, ये आपने पढ़ा होगा। इस तरह से एक्सपेंशन होता है जिसकी पावर निगेटिव होगी, ऐसे एक प्लस होगा फिर एक माइनस होगा फिर एक प्लस होगा फिर एक माइनस होगा, और इसकी पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, अगले में कितनी आएगी 2 फिर 3। नाउ H इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, तो H अपॉन R कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्मॉल क्वांटिटी। अगली बार ये स्क्वायर हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगी, उसके बाद और स्क्वायर होगा तो 3 पावर हो जाएगी और स्मॉल हो जाएगी। सो ऑल दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। हायर पावर ऑफ H अपॉन R, तो इस चीज को अब लोग हम ऐसे ही लिख देते हैं, हायर पावर ऑफ H अपॉन R आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। हायर पावर्स of H upon R are very small and can be neglected। अगर हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा, GH upon GS is equal to 1 minus 2H upon R, बस 1 minus 2H upon R। अब आप चाहे तो GS को इधर ले जा सकते हैं, सो G at height is equal to 1 minus 2H upon R into G on the surface। ये हमारा फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले में क्या रेस्ट्रिक्शन है, हाइट कैसी होनी चाहिए, वेरी स्मॉल कंपेयर टू R। तो ये हमारा फॉर्मूला G at height is equal to 1 minus 2H upon R, GS। ठीक, तो अगर हमको ये न्यूमेरिकल दिया जाता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, एट ए हाइट ऑफ 4 किलोमीटर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 minus 2H upon R। और अगर हमको ये दिया जाता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट ऑफ 5000 किलोमीटर, तो ऊपर वाला यूज करेंगे क्योंकि उसमें H R से बहुत छोटा नहीं, राइट। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल लिखिए, एट विच हाइट above the surface of earth, at which height above the surface of earth the value of G become 1/4, at which height above the surface of earth the value of G becomes 1/4।
हाँ जी, जिसको कैसे सॉल्व करेंगे? एट हाइट h at height h the value of g become g upon 4. ओके, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला कौन सा यूज करेंगे आप? नीचे वाला कि ऊपर वाला? अगर आपको डाउट है तो हमेशा ऊपर वाला यूज करिए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है? ये। इसमें हमने क्या लिया है? अप्रोक्सीमेशन और बाइनोमियल की बहुत सारी टर्म्स को छोड़ दिया है। सो दिस इज नॉट एक्यूरेट, इसमें एरर होगी, इसलिए इसको नहीं लेना। छोटी हाइट्स के लिए लेना, और यहां तो हाइट हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम एक्यूरेट फॉर्मूला लेंगे। ये वाला फॉर्मूला लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है हमें? GH अपॉन GS इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H स्क्वायर। और ये हमें क्या बताया जा रहा है? G at height is 1/4 of GS. So this we can write as 1/4 of GS अपॉन GS। अब देखिए ये दोनों कैंसल हुए, तो ये क्या बचा? 1/4। तो ये अब हमारा आ गया, ये दोनों कैंसल हो गए, तो R अपॉन R प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। R प्लस H का स्क्वायर सबको आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप करोगे, यहां पे आता है तो करना है, ये जरूरी नहीं है। क्यों? इसका ज्यादा इजी तरीका क्या है? इसको आप लिखिए हाफ का 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ का स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो क्या बचा? ये R अपॉन R प्लस H इज इक्वल टू हाफ। So 2R is equal to how much it is? R plus H. अब H की वैल्यू निकाल दीजिए। H is equal to R. तो ये पॉइंट कितना ऊपर होना चाहिए? रेडियस के बराबर और ऊपर होना चाहिए सरफेस से। वहां पर G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। G की वैल्यू 1/4। ठीक है। इस न्यूमेरिकल में क्या कमी है? मैथमेटिकल एक हमने गड़बड़ की है, बताइए। जब आप किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन कैरी करता है, करेक्ट? इसलिए जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये क्या होना चाहिए? और हमने सिर्फ किससे बनाया? प्लस, तो माइनस से भी बनाइए। फिर बताइए कितना आता है? H इज इक्वल टू कितना आया? -3R। ये कैसा आंसर है? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे करेक्ट आंसर है? पहला आंसर आपका क्या आया? H इज इक्वल टू R। ये H किसके बराबर है? R के बराबर। अब H इज इक्वल टू -3R कहां है? माइनस मीन्स उल्टी डायरेक्शन में, यहां से चलिए -3R, यहां से सरफेस से ये कितने R हो गए? 1। यहां से यहां तक कितना R हो गया? -2। यहां से स्टार्ट किया है, यहां तक -R, ये कितना हो गया? -2R। और एक R ऊपर जाइए, अब ये पॉइंट कितना हो गया? -3R। सरफेस से कितना ऊंचा है? R।
तो यहां पर भी g की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ। यहां पर भी कितनी मिलेगी, हाफ। और ऐसे ही ये पूरी सरफेस, ये हर पॉइंट पे कितनी मिलेगी, यस, g की वैल्यू 1/4 आपको मिलेगी, क्योंकि हर जगह सरफेस से कितनी ऊंची है, r r r। तो मैथमेटिक्स ने हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। हमने अगर इसको सरफेस माना है तो h की एक वैल्यू कितनी आई है, 1r, और दूसरी वैल्यू कितनी आई है, -1 2 3r, इस पॉइंट से, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली ये भी क्या है, फ्रॉम द सरफेस कितना दूर, r, राइट। तो इसलिए मैथमेटिकली वो करेक्ट है। तो अगर आपका मैथमेटिकली ऐसे प्लस माइनस निकलता है तो उसमें घबराइए मत, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। अगर आपको लॉजिक समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे, तो आप वो रास्ता अपनाएंगे जिसमें आपका मनपसंद आंसर आता हो। हमारा मनपसंद रास्ता क्या है कि h = r आना चाहिए, और बाई चांस आपका आ गया h = -3r और आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको काट दीजिए, दोबारा बनाइए। इस तरह से बनाइए कि आप कौन सा रूट लेंगे, पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट लेके आंसर कितना ले आओगे, r, और खत्म कर दो, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं याद रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रहता है, बहुत अच्छा, ओके। अदरवाइज उतना ही बनाना काफी है। तो ये ध्यान लीजिए, P is a point inside the earth, एक माइन के अंदर है और इसकी डेप्थ कितनी है, d। तो यहां पर g की वैल्यू क्या होगी, ये हमने निकाला, ओके। इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमको समझना है। वो प्रिंसिपल अगर आप समझ गए तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। वो प्रिंसिपल ये है कि ग्रेविटेशन का फोर्स इस पर अर्थ के कौन से पार्टिकल लगाते हैं और कौन से पार्टिकल नहीं लगा पाते। जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट रखा m, मास है इसका, यहां पर एक दूसरा पॉइंट रखा m, r डिस्टेंस पे, और इस तरफ एक और पार्टिकल रखा, ये m, और इसका डिस्टेंस भी सेम r है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ, 0। नेट फोर्स कितना हुआ, 0। क्यों, हमको वेक्टर के रूल मालूम है, हमको फोर्सेस के रूल मालूम है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 0। वैसे ही हमने बनाया, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर देखिए, ऐसा हमने एक लाइन खींची, ऊपर के सारे पॉइंट इस P वाले P पर जो मास रखा है उसको किधर खींचेंगे, ऊपर की तरफ, और ये नीचे वाले पॉइंट, इसमें जितने पॉइंट हैं ये सब इसको किधर खींचेंगे, नीचे की तरफ, और ये किधर खींचेंगे, ऊपर की तरफ। ये इसके ज्यादा नजदीक हैं पर इनका क्वांटिटी कम है, ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पर डिस्टेंस इसका थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। दोनों का फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स बराबर है। तो ये वाली अर्थ का ये जो पार्ट है, इस पार्ट के कारण इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, 0। ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। आप कैसा भी डिवीजन कर सकते हैं, ऐसा डिवीजन करके देखिए, अर्थ के दो हिस्से, इसको इधर वाला हिस्सा कैसा खींचता है, इस तरह, ये सब ये वाले किधर खींचते हैं, इस तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर वाला हिस्सा ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो लेफ्ट साइड लगने वाले फोर्स और राइट साइड लगने वाले फोर्स बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो बाहर वाला शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन के कारण इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, 0, राइट। तो हमने एक चीज याद कर ली, इफ देयर इज ए बॉडी इनसाइड ए शेल, शेल किसको कहते हैं, इसको जो एक खोखला कवर होता है उसको शेल कहते हैं। जैसे फुटबॉल के पास शेल होता है,
तरबूज आपने देखा है, तरबूज के ऊपर का जो व्हाइट पोर्शन होता है दैट इज ए शेल, जिसके अंदर एक सॉलिड पिंक कलर का भरा रहता है, ये शेल होता है। तो वैसे ही ये शेल है और ये पॉइंट शेल के अंदर है। तो शेल के अंदर जो भी पॉइंट होता है उस पर ग्रेविटेशन का फोर्स कितना लगता है? 0। उसका रीजन अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ लगने वाले फोर्सेस दूसरे तरफ लगने वाले फोर्सेस को काउंटर करके बैलेंस कर देते हैं। तो उस पे नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अगर हम इस पर पूरी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमको समझ में आ गया कि इतने सारे जो पार्टिकल हैं इन सब का मिलाकर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 0। तो इसको छोड़ो। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगेगा? अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये छोटे वाले बॉल के कारण लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉल इसके एक साइड में है, दूसरे साइड में इसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है, पूरा नीचे है, ऊपर नहीं है। तो ये नीचे अपने सेंटर की तरफ इसको खींचेगी ऐसे। और ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ बात आ रही समझ में? अर्थ के हमने 2 हिस्से कर दिए, एक ये शेल बनाया और एक ये अंदर का स्फीयर बनाया। इस शेल में जितने पार्टिकल इसके ऊपर का हैं वो इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और जितने पार्टिकल इसके नीचे हैं उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। दोनों के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इसीलिए नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। पर किसके कारण? शेल के कारण। इसलिए इस शेल के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स 0 डिक्लेयर करके हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ किसके कारण लगता है? जो इसके अंदर ये वाला इनर स्फीयर बचता है उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसकी कैलकुलेशन कर देंगे और उसके कारण जी की वैल्यू निकाल देंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। आर्गुमेंट समझ में आया? ठीक है। अब इसी आर्गुमेंट को आपको 2 लाइनों में लिखना है और ये लिखना जरूरी है, तभी हम आगे की कैलकुलेशन कर पाएंगे। हाँ जी, इधर देखिए, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की उसी को लिखा है। P is a point at depth D inside the earth. Let us draw a concentric shell which is passing through P. Concentric मतलब जो अर्थ का सेंटर है वही शेल का सेंटर भी है। ओके। The gravitational force due to particles in the outer shell cancel each other. एक तरफ वाले दूसरी तरफ वाले के फोर्स को कैंसिल कर देते हैं and net force is 0. अब कौन सा हिस्सा बच गया? अंदर वाला। So gravitational force act due to inner sphere only. ये बात समझ में आ गई। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस इनर स्फीयर के कारण कितना फोर्स काम करता है और हमारे पास फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gmm/r²। उसमें हमको क्या पता होना चाहिए? दोनों बॉडी का मास। ये जो पार्टिकल हमने पी पे रखा है, ये जो बॉडी रखी है, इसका मास है स्मॉल m। अब ये जो अर्थ का मास है ये पूरी अर्थ का मास नहीं है। क्यों? क्योंकि शेल तो अब उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो जो अंदर का स्फीयर बचा है उसका हमको मास निकालना है। उसका मास हम कैसे निकालते हैं? उसका मास निकालने के लिए हम बड़ा सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी, मीन डेंसिटी कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है। हम कुछ उसकी डेंसिटी मान लेते हैं और लेट इट डेंसिटी बी रो। तो उसका मास कितना हो जाएगा? तो उसके लिए हम इसमें नोट कर सकते हैं मास ऑफ द इनर स्फीयर इफ मीन डेंसिटी of earth is rho, then mass of inner sphere is, हाँ जी बताइए मास कितना होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी और मास इफेक्टिव इज इक्वल टू वॉल्यूम हम लिख सकते हैं
4 upon 3 pi r cube. How much is the radius of this sphere? Yes, correct. R minus d cube. 4 upon 3 pi r cube multiplied by density rho. This is density. Okay. Then force on body P. ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? G me m upon r square is equal to, यहां पर अब हम वैल्यू रखते हैं, G की वैल्यू हम G रखेंगे, मास ऑफ अर्थ जो इस पर इफेक्टिव मास काम कर रहा है उसकी वैल्यू यहां से लाएंगे ये, and this will be 4 upon 3 pi r minus d cube multiplied by rho. This multiplied by m. This is to be divided by r square. Distance from the center to this point is r minus d. So this is r minus d square. ये टर्म्स को देखिए. So this is equal to 4 upon 3 pi, and this is G rho m r minus d. Okay, this is equal to force. अब यहां पर अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू यहां पर हम लेते हैं g एट डेप्थ. g एट डेप्थ को क्या लिखा? gd. g एट हाइट को क्या लिखा था? g एट सरफेस को gs. ओके, सो अगर यहां पर एक्सीलरेशन gd है तो इसके हेल्प से फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? मास इनटू एक्सीलरेशन, that is m into gd. So this force is equal to m into gd. और दोनों तरफ से m को कैंसिल कर दीजिए. ये वैल्यू किसकी आ गई? At depth this is equal to 4 upon 3 pi g rho m r minus d. This is value of g at depth. क्या बच गया? m तो हम कैंसिल कर चुके हैं, so this will be cancelled. This will be only r minus d. ये वैल्यू किसकी आई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ. पर मजा नहीं आया, हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कम हुआ कि ज्यादा हो गया. तो इसके लिए आपको वो करना है that what is the value of g on the surface of earth in the same language. देखिए उसको कैसे निकालते हैं. ये now g on the surface is equal to g m upon r square is equal to g. ये क्या है? मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ को पूरी अर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 upon 3 pi r cube multiplied by density. This is volume, this is density. ये क्या आ गया? मास ऑफ द अर्थ multiplied by m upon r square. r square क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट अब कहां पर है? ऑन सरफेस. ऑन सरफेस gs की ये वैल्यू आई. इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए. ये r square r cube, this will be cancelled. This is r rho m
और ये किसके बराबर होता है, mg। दोनों तरफ m को कैंसिल करिए तो आपको g की वैल्यू मिल गई, और ये g की वैल्यू अब कितनी आएगी, is equal to mg on the surface। दोनों तरफ m कैंसिल हो गया, this is the value of g। g on the surface is equal to 4/3 pi g rho multiplied by r। g at the depth 4/3 pi g rho r minus g। दोनों को डिवाइड करिए, this divided by this, then g at depth divided by g on surface, this divided by this is equal to, ये पूरा 4/3 pi g rho कैंसल, तो ये क्या हो गया, r minus d upon r, r minus d upon r। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, g at depth is equal to, ये डिवाइड कर दिया 1 minus d upon r into g on the surface। अब इसको देखकर बताइए कौन छोटा कौन बड़ा, r माइनस d छोटा होता है कि r छोटा होता है, ये छोटा और ये बड़ा, इसलिए इधर भी ये छोटा और ये बड़ा। ये क्या है, ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस, ये क्या है, एक्सेलरेशन एट द डेप्थ। तो एक्सेलरेशन एट द डेप्थ कैसा होता है, छोटा, लेस होता है। तो इसको देख के हमने कंक्लूजन क्या निकाला, विद डेप्थ acceleration due to gravity, that is g, decrease। देखिए जैसे जैसे डेप्थ की वैल्यू बढ़ती जाएगी माइनस वाला पोर्शन बढ़ता जाएगा और इसकी वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितना अर्थ के अंदर जाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस बताइए, अगर अर्थ के सेंटर में चले गए तो d किसके बराबर हो गया, r के बराबर। एट सेंटर ऑफ अर्थ d is equal to r, therefore g at depth is equal to 0। d को अगर r कर देंगे, r अपॉन r कितना होता है, 1 माइनस 1 0, तो g की वैल्यू क्या होती है, 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 0। इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये हमने निकाला, विद डेप्थ द वैल्यू डिक्रीज। अब दो चीजें हम निकाल चुके हैं। What happens to value of acceleration with height? It decreases. What happens to value of acceleration due to depth? It decreases. ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज और बताइए। If we go 2 kilometer height, 2 kilometer height from the surface, what will happen to acceleration? Decrease. It will, if we go 2 kilometer depth, at 2 kilometer depth, the acceleration will again decrease. At which place it will decrease more? Will it be less at 2 kilometer height or will it be less at 2 kilometer depth? Or will it be same? इसको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, इसका आंसर निकालने के लिए हमेशा सपोर्ट लीजिए फॉर्मूला की। अपने मन से मत सोचिए कि मेरा दिल ये कहता है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला देखिए,
ओके, हाइट वाला फॉर्मूला देखिए, जी हाइट का, थोड़ी सी हाइट पर क्या फॉर्मूला होता है? जी एट हाइट यस, ये आपने नोट किया था, जी एट हाइट, थोड़ी सी हाइट के लिए ये फॉर्मूला है। जी एट डेप्थ, हाँ जी, ये हाइट रखिए 1 किलोमीटर, डेप्थ रखिए 1 किलोमीटर, बताइए इसकी वैल्यू कम आएगी? अरे माइनस करना है आपको, माइनस वाला पोर्शन किसमें बड़ा है, एच में कि डी में? ये आपने रखा 1 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया 2/r। इसको भी 1 किलोमीटर रखा तो ये क्या हुआ 1/r। किसमें ज्यादा माइनस हुआ? जीएच में ज्यादा माइनस हुआ। अगर जीएच में ज्यादा माइनस हुआ तो जीएच की वैल्यू कैसी हो गई, कम की ज्यादा? कम। समझ में आया? हाइट से इसका निगेटिव, इसका माइनस कितना होता है 2, और इसमें डी का माइनस कितना होता है 1। तो कौन ज्यादा माइनस करता है? हाइट ज्यादा माइनस करती है, दिख रहा है? हाइट कितना माइनस करती है 2 टाइम्स, डी कितना माइनस करता है 1 टाइम। तो कौन ज्यादा माइनस करता है? हाइट। सो इफ वी गो एट 2 किलोमीटर हाइट एंड 2 किलोमीटर डेप्थ, तो ज्यादा माइनस कौन करेगा? हाइट। सो वैल्यू विल बी लेस एट 2 किलोमीटर हाइट। इसको नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रिंसिपल क्या बनता है? प्रिंसिपल के लिए अच्छे से शब्द सुनिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, और ये जो कम होने का सिलसिला है ये ऊपर जाने में ज्यादा होता है और नीचे जाएंगे तो कम होता है। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ जी डिप्लीट faster with height. The value of G depletes faster with height. Deplete मतलब कम हो जाना। हाइट पर जाएंगे तो जल्दी जल्दी कम होगी, और डेप्थ पे जाएंगे तो धीरे धीरे कम होगी। जल्दी कम होगी 2-2 का स्टेप, 1-1 किलोमीटर में 2-2 का स्टेप होगा, और इसमें स्टेप 1-1 का होगा। ड्यू टू वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड चेंजेस। इसमें आपको पहले शब्द समझना है, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। अर्थ है, ये अर्थ की रोटेशन की एक्सिस है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ ऐसे घूमती है। घूमने की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होती है कि वेस्ट टू ईस्ट होती है? वेरी गुड। अर्थ की घूमने की डायरेक्शन याद रखिए वेस्ट टू ईस्ट होती है, इसीलिए हमको सन किधर जाता हुआ दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो ये अर्थ ऐसे रोटेट करती है। ये जो अर्थ रोटेट करती है इस पर हमने अलग अलग लाइंस बनाई हुई हैं, ऐसे बनी। ये जो लाइंस बनी हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। ये लैटिट्यूड लाइंस के नंबर कैसे डिसाइड होते हैं, इसको देखिए। ये अर्थ एक स्फीयर है, जैसे एक मुसम्बी होती है गोल, उसको ऐसा पकड़ के ऐसा बीच से काटिए। बीच से आप काट के उसको ऐसा देखिए तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? एक सर्कल। उस सर्कल का एक सेंटर, वो सेंटर क्या होता है? इस स्फीयर का सेंटर। वैसे ही अर्थ का एक सेंटर होगा,
उसके लिए हमने अर्थ को ऐसा बीच से काटा, तो ये अर्थ ऐसे कटी। ये जो सेट हमको यहां पर सर्कल मिला, इसकी ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कहां है? अर्थ की सरफेस पे। इस सरकमफ्रेंस को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये एक्सिस और ये वाली सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90। तब ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? इक्वेटर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। ये इक्वेटर बना, ये सरफेस बना, ये सेंटर बना। अब इसके ऊपर ऐसा स्फीयर बना हुआ है, अर्थ की सरफेस। उस स्फीयर में यहां पर इंडिया है, यहां पर हमारी लोकेशन है। ओके, इस सेंटर से इस लोकेशन को ऐसे मिला दीजिए। यहां पर हमारी लोकेशन है और ये जो सेंटर है, यहां से हमने इसको ऐसे मिलाया। ये इस लाइन के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल है लैम्डा। मान लो ये जो एंगल है, दिस इज नोन एज लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड होता है। ठीक है, अब इक्वेटर पर एक शहर है, इक्वेटर पर एक शहर है, ये यहां आया ऐसे, तो उसका लैटिट्यूड कितना होगा? 0। ठीक है, ये ऐसा ऊपर गया, यहां पर श्रीलंका आया। श्रीलंका के साथ जो लाइन बनती है वो एंगल बनता है 33। तो हम कहेंगे श्रीलंका का लैटिट्यूड कितना है? 33। फिर ऊपर कोरबा आया, कोरबा का लैटिट्यूड 38। और ऐसा ऊपर चलता गया, चलते 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 नॉर्थ पोल आ गया। कितना एंगल बना? 90। तो पोल का लैटिट्यूड कितना हुआ? 90। तो लैटिट्यूड कितने होते हैं? 90 टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 90 टुवर्ड्स साउथ। ये लैटिट्यूड के नंबर होते हैं। तो इस तरह से लैटिट्यूड के नंबर बनाए गए। इक्वेटर का लैटिट्यूड नंबर क्या होता है? 0। और पोल का लैटिट्यूड नंबर क्या होता है? 90। और लैटिट्यूड कैसे हम बनाते हैं? द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ इक्वेटर, दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, with the line joining that point to the center of the earth। अगर हम यहां सेंटर ऑफ द अर्थ पर खड़े हैं और हमको 33 लैटिट्यूड निकालना है, तो यहां से हमने एक लाइन खींची, कितना एंगल बना के? 33। ये लाइन ऐसे जाते जाते जहां सरफेस पे निकली, उस शहर का लैटिट्यूड कितना? 33। ऐसे लाइन भेजी उस शहर का 33, इसका भी 33, इसका भी 33, इसका भी 33, सबको ऐसा मिला दिया। क्या बना? एक सर्कल। वो जो सर्कल यहां पर ऐसे बनेगा, ये, इसको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड 33। अगर ये एंगल 60 है तो इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड 60। तो लैटिट्यूड लाइन कैसी बनेगी? एक सर्कल बनेगी। इक्वेटर पर जो सर्कल बनता है उसका लैटिट्यूड नंबर 0, उसके ऊपर लैटिट्यूड 10, 20, 40, 60, 80 एंड 90। इस तरह से सर्कल बने रहते हैं। ये होते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब हमको ये देखना है कि इस लैटिट्यूड का जी में क्या इंटरफेरेंस है, जी में क्या इफेक्ट पड़ता है इस लैटिट्यूड से। तो देखिए, यहां पर एक पार्टिकल रखा है जिसका लैटिट्यूड है लैम्डा, और अर्थ ऐसे घूम रही है। जब ये अर्थ ऐसे घूमेगी तो इस पार्टिकल पर घूमने के कारण एक फोर्स लगता है जो इसको बाहर की तरफ फेंकता है। यस, क्या फोर्स का नाम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बाहर की तरफ फेंकेगा। और ग्रेविटेशन का फोर्स mg इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो नेट फोर्स ग्रेविटेशन के फोर्स को कम कर देता है। नेट फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल किधर फेंकता है? उसको बाहर की तरफ। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशन का फोर्स निकालो, उसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को माइनस कर दो। क्या आ जाएगा? नेट फोर्स। एंड दैट
इज द एपेरेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उस फोर्स में मास m से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें हमने ऑलरेडी किसको माइनस कर दिया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इसलिए वो हमारा इफेक्टिव g या एपेरेंट g की वैल्यू आएगी। तरीका आप समझ रहे हैं? हम क्या लेंगे? एक्चुअल वैल्यू ऑफ g, उससे क्या बनाएंगे? mg अंदर की तरफ, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किधर फेंकता है? बाहर की तरफ। बस माइनस करेंगे और हमारा रिजल्ट आ गया। अब वो छोटी सी कैलकुलेशन आपने करनी है। यहां पर एक फोर्स लगता है जो उसको बाहर की तरफ फेंकता है। अब थोड़ा अपना इमेजिनेशन लगाइए और मुझे बताइए कि वो बाहर फेंकने वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में इसको बाहर फेंकेगा? इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ 3, इस तरफ 4, इस तरफ 5। बताइए किस डायरेक्शन में ये पॉइंट P को बाहर फेंकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्या सोचते हैं? आपका दिल क्या कहता है? हाँ जी, किस डायरेक्शन में बाहर फेंकता है? देखिए, आप लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपको लगता है बड़ी छोटी सी चीज है। पहली बार जिस आदमी ने इसको सोचा वो भी उतना ही कंफ्यूज था जितने आप अभी कंफ्यूज हैं। ओके, एनीवे, याद रखिए, जब कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड काम करता है। रेडियली आउटवर्ड, ये शब्द समझते हैं? जिस सर्कल में घूमता है, ये पार्टिकल P एक सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल को इमेजिन करिए, उसकी कल्पना करिए। वो सर्कल कहां है? क्या वो सर्कल ऐसा है? एक्सिस कहां है? ये। तो सर्कल कैसा होगा? वेरी गुड, ऐसा सर्कल। ठीक है, अगर ये यहां ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो इस सर्कल का रेडियस कहां है? ये। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। अब बोलो 4। समझ में आया कैसे सोचना है इसको? जिस सर्कल में घूमेगा उसी सर्कल के रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ फेंकाएगा। और ये इसका सर्कल है घूमने का, ये रेडियस है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? नंबर 4। ये आप सबको याद रखना है। ओके, तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। ये सबको मालूम है। ये r, यहां पर कौन सा r होगा बताइए? ये वाला r कैपिटल R लेना है कि ये वाला स्मॉल r लेना है? स्मॉल r लेना है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सर्कल के कारण हो रहा है और इस सर्कल का रेडियस कितना है? स्मॉल r। इसलिए यहां पर हम क्या लेंगे? स्मॉल r। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। v को अगर हम लिखेंगे r ओमेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mr²। कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए? तो हम देखते हैं किसमें वेरिएबल नहीं है। तो आंसर है, अर्थ का हर पार्टिकल एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है। कौन सी एंगुलर वेलोसिटी? 360 डिग्री इन 24 आवर्स। सब पहला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सबकी कौन सी वेलोसिटी एक समान है? एंगुलर। हर एक कितना एंगल बनाते हैं? 360 इन 24 आवर्स पर डे।
इसलिए सबका ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट, इसलिए हमको ये फॉर्मूला यूज करने से ज्यादा बेनिफिट है। और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो हर एक की अलग अलग हो जाएगी, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर। और ये बाहर की तरफ फोर्स लगा कितना, mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये यहां पर लगा इस तरफ। अब देखिए अगर इधर mr ओमेगा स्क्वायर लगता है, mg किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, ये वाला फोर्स है mg। अगर ये mr ओमेगा स्क्वायर इधर लगता है, इधर mg लगता है, तो ये mg अब कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, क्या हम mg में mr ओमेगा स्क्वायर को माइनस कर दें, अलाउड या नॉट अलाउड? तो आंसर है इट इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। वेक्टर में हमारा रूल क्या कहता है, इधर का फोर्स 10 है, इधर का फोर्स 4 है, तो इसलिए नेट फोर्स 6 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ये 6 कब बचेगा, जब इधर 10 होगा और इधर 4 होगा। एक लाइन में हमारा प्लस माइनस करना अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस mg पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस mr ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल और एक कंपोनेंट रेडियल। ये हमने इसके दो कंपोनेंट बनाए। ओके, अब देखिए ये दो कंपोनेंट में ये वाला कंपोनेंट कितना है बताइए। ये एंगल कितना है, लैम्डा, तो ये एंगल कितना है, लैम्डा, तो ये एंगल कितना है, लैम्डा। ठीक है, अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला फोर्स कितना होगा, mr ओमेगा स्क्वायर इनटू cos थीटा। ओके, ये डायग्राम थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है। ये इसकी एक्सिस है नॉर्थ साउथ, ये इसका इक्वेटर प्लेन है, ये इसका सेंटर है, ये हमारा पॉइंट है P जहां हमने मास m रखा हुआ है, ये इसका रेडियस है r, और ये पॉइंट जब ऐसे घूमता है तो इसका रेडियस कितना होता है घूमने का, r, और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो इसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, mr ओमेगा स्क्वायर। इसका ये एंगल लैम्डा है, लैटिट्यूड, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, लैम्डा, इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, लैम्डा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। ठीक है, mr स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। तो इधर जो फोर्स लग रहा है मास m पर, ये फोर्स इधर कितना लग रहा है, mg। इधर फोर्स कितना लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। तो इधर का फोर्स mg ही रह जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, राइट। सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, net force on the body mg minus mr omega square cos lambda। ये आ गया नेट फोर्स। अगर इस नेट फोर्स का एक्सीलरेशन g डैश है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg डैश। अब m को थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए, कॉमन निकाल के ये कैंसिल हो गया, तो g डैश की वैल्यू g माइनस, लेकिन ये जो छोटा r है इसको हम नहीं पहचानते, ये हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हर जगह के लिए बदल जाएगा, इसलिए हम इस r को इस r में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाले ट्रायंगल में देखिए स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में कौन सा रेशियो दे रहा है,
R upon R, base upon hypotenuse, cos lambda। तो R किसके बराबर हुआ? R cos lambda। So this what we can write it, R cos lambda। तो अब ये क्या हो गया? R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर lambda। ओके, अब इसको देखिए, व्हाट इज जी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द अर्थ नोन टू अस 6400 किलोमीटर। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ व्हिच इज ए कांस्टेंट। व्हाट इज डेल्टा? सॉरी लैम्डा। लैम्डा इज लैटिट्यूड। जिस लोकेशन पर हमको जी की वैल्यू चाहिए वहां का लैटिट्यूड हमको मालूम है, वो वैल्यू हम यहां रख देंगे। अब ये भी सब नोन है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी डैश। इस वैल्यू को देखिए, ये जी से एक क्वांटिटी माइनस हो गई है, तो जी से जब आप कुछ भी माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ये वैल्यू कैसी है? लेस देन जी। सो ड्यू टू रोटेशन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन व्हाट? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। देयरफॉर ड्यू टू रोटेशन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। ठीक है, एक चीज। दूसरा, लैम्डा की वैल्यूज को देखिए, सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां होगा? जहां cos लैम्डा 1 होगा। cos 1 कब होता है? किस एंगल के लिए? 0। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू 0 होने से ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, माइनस मैक्सिमम हो जाएगा, और जी डैश सबसे छोटा हो जाएगा। तो जी डैश सबसे छोटा हो जाए, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी चाहिए? 0। 0 लैम्डा कहां होता है? इक्वेटर। इसलिए इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू कैसी होगी? सबसे छोटी। तो नोट कर लीजिए, एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 जी डैश इज मिनिमम, और एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं? एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जी डैश की वैल्यू मिनिमम होती है, और ये कितनी होती है? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमने जी डैश निकाला कहां? इक्वेटर पे, तो यहां लिख दिया इक्वेटर। जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी ऑन दी पोल्स माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कहां पे है? इक्वेटर पर। अगर पोल पर जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू 90, यहां पर 90 रखिए, ये क्या हो जाएगा? cos 90 इज 0। ये पूरा 0 हो गया, तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? जी। सो एट पोल्स जी डैश इज इक्वल टू फुल वैल्यू, कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये इक्वेटर पे वैल्यू और ये पोल पर वैल्यू, सबसे कम कहां? इक्वेटर। बीच में लेंगे तो जितनी लैम्डा की वैल्यू आएगी उतना माइनस होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर पर कितनी एंगुलर वेलोसिटी हो जाए कि आदमी वेटलेस हो जाएगा। आदमी कब वेटलेस हो जाता है? जब जी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। अगर जी डैश अपेरेंट जी की वैल्यू 0 हो जाए तो आदमी को नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा एंड ही विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। तो हमारा आंसर है फॉर वेटलेसनेस जी डैश शुड बी इक्वल टू 0। यहां पर आप जी डैश को 0 कर दीजिए इक्वेटर पे, तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू G अपॉन आर रूट।
ये आ गया। दिस इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। इसका फिर से क्वेश्चन सुनिए, व्हाट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सो दैट थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग वेटलेस ऑन द इक्वेटर। तो ये हमने निकाला ऑन द इक्वेटर g डैश इज इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बिकम 0। इसको 0 बनाया तो ये वैल्यू आ गई, इससे हमने ओमेगा निकाला रूट जी अपॉन आर। जी की वैल्यू कितनी है 9.8, आर की वैल्यू कितनी है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। ये दोनों वैल्यू को रखेंगे, रूट निकालेंगे, ओमेगा आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई डोंट रिमेम्बर, हर बुक में ये सॉल्व है, उसको आप देख लीजिएगा। सो दिस इज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड। अब एक वेरिएशन और बचा है, कौन सा? वेरिएशन ड्यू टू शेप। आप 30 सेकेंड और रुकिए। देखिए ये अर्थ की शेप है, अर्थ की शेप टोटली, इधर ध्यान दीजिए, अर्थ की शेप एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती है। ये वाला रेडियस, रेडियस टुवर्ड्स पोल ये छोटा होता है और रेडियस टुवर्ड्स इक्वेटर ये बड़ा होता है। सो RP इज लेस, ये हम क्या बना रहे हैं? चेंजेस ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। R टुवर्ड्स पोल इज लेस देन R टुवर्ड्स E। अब बताइए G एट द पोल विल बी मोर देन G एट द इक्वेटर। क्यों? जितना डिस्टेंस कम होगा उतना G की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसके अंदर भी पूरा अर्थ है और इसके नीचे भी पूरा अर्थ है, इसलिए वो शेल वाला चक्कर इसमें नहीं आएगा, राइट। तो ये हमने बनाया, दिस इज ड्यू टू शेप। द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका रीजन है, नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। RP is less than RE, therefore GP is more than GE। तो पोल पर हमेशा G की वैल्यू ज्यादा होती है, किस रीजन से? शेप। पोल पर G की वैल्यू ज्यादा होती है, किस रीजन से? रोटेशन। रोटेशन के कारण भी कहां ज्यादा होती है? पोल पे। और शेप के कारण भी कहां ज्यादा होती है? पोल। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ G इज फाउंड टू बी एट पोल, ठीक है। सो दिस इज ऑल द वेरिएशंस ऑफ G, ठीक।